Welcome you all, my dear students. Today we start our chapter 14, that is symmetry. Now, in this chapter, we will study symmetry, that is line symmetry, for which we will study 14.1 exercise. Okay, after that, rotational symmetry, translational symmetry, and reflection symmetry. Okay, and we can also learn mirror symmetry. So let us proceed with this symmetry. Okay, this is symmetry. You can see some lines are drawn over here, some line drawn over here, and what does it mean under topic symmetry? What does it mean under topic symmetry? So first of all, we will discuss what is line of symmetry. Line of symmetry: a line on which a figure can be folded so that both side matches. Means a line of symmetry. If we fold any figure along any line, means if we have got any figure and if we are going to fold this figure, हम इसको यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं. वी कैन फोल्ड इट इन एनी वे, बट both side matches. This is the key point. Please remember this point, both side matches when we fold something. Okay, we will study this, both side matches. So identify and describe symmetry in geometrical figures or pictures up to 4 lines of symmetry. ये कुछ लिखा हुआ है, no need to worry. Let us move to further now. What I was saying about line of symmetry, you can understand here. Now this is a figure given to you, and if you make this line, so this is the simple line. I am not saying this line is line of symmetry, मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी. So what happened when we fold this line, when we fold this figure along this line and we टेक दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये फिगर कुछ ऐसे बनने वाला है. देखो कैसे बनने वाला है. ये फिगर आपको ऐसे नज़र आएगा, ये फिगर है और ये फिगर कुछ मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आ जाएगा, बिल्कुल ये एक दूसरे ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे को. ऐसे वही हो जाएगा ना, आपको समझ में आ रहा होगा. ये फिगर ऐसे बन जाएगा. तो ये हर कोना इस फिगर का जो राइट साइड है, इसका हर पॉइंट इसको ओवरलैप कर देगा लेफ्ट साइड वाले को और ढक देगा. और वी कैन ऑल्सो से इफ वी पुट दिस पार्ट ओवर दिस, तब भी सेम होने वाला है. सो दैट्स वाई वी कैन से दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. Line of symmetry. Now we read the definition. To be a line of symmetry, the shape must have two exactly halves that match exactly. यही मैंने बोला था, दो हाफ सिमिलर होने चाहिए. ठीक है. When you trace a heart onto a piece of folded paper and then cut it out, the two half hearts make a whole heart. The two halves are symmetrical. कैसे बोले जाएंगे? Symmetrical. I hope now you don't have any problem regarding line of symmetry. Let us study some more about symmetry. Now we have got some figures. Which of these flags have a line of symmetry? Can you say for this? We cannot make a line. We cannot as a whole flag.
मैं पर्टिकुलर एन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर ओ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर इस फ्लैग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर पूरे फ्लैग की बात कर रहा हूँ. वी डोंट हैव एनी लाइन कि हमने इसको ड्रॉ किया और वो 2 पार्ट में फिगर बांट दे, तो ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है. सिमिलरली इसमें भी सिमेट्रिकल फिगर नहीं, इसीलिए नो लिखा हुआ है. नो इसलिए लिखा हुआ है कि सिमेट्रिकल फिगर नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी लाइन. हम ऐसी कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि वो फिगर सिमेट्रिकल हो. क्योंकि अगर ये फिगर ले लेते हैं, लेट अस टेक, हमने ये फिगर लिया और यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या ये फिगर सिमेट्रिक होगा? नो, इट विल बी नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज ये यहाँ पे ओवरलैप करेगा, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, और ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा. अगर मैं इस यहाँ लाइन खींचता हूँ तब भी तो ये नहीं होगा. बट फॉर दिस फिगर वी हैव ड्रॉन वन लाइन, एंड नाउ यू कैन सी ईच एंड एवरी पॉइंट. ये पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये पॉइंट इसके ओवर ओवरलैप करेगा, ये पॉइंट इसके ओवर ओवरलैप करेगा, और ये वाला पूरा फिगर इसके ओवरलैप कर जाएगा. सो दिस इज सिमेट्रिकल फिगर and this is also symmetrical figure. But here we have got only one line of symmetry, only one line of symmetry. But in this case, if you fold this map along this line, even then it is symmetric, and along this line again it is symmetric. It means we have got more than one line of symmetry. यहाँ तक ये क्लियर हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, और ये भी क्लियर हो गया है कि एक फिगर की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम इंटरेस्टिंग चेंजेस फॉर द लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ you can see what about these math symbol. मैथ्स क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैथ्स ऐसा होना चाहिए. what about these math symbol? do you have this do they have symmetry? yes. देखो इसके along है, इसके along है, इसके along है, इसके along है. each and every symbol has got 2 line of symmetry, 2 line of symmetry. Each symbol has got 2 line of symmetry, because if you fold any symbol with respect to any of the line, you will get what? Same figure. Okay, so each figure has got 2 line of symmetry. Now what about we can say number of symmetry? What we can say number of lines for our symmetrical figures? What we can say? What we can say? How many lines of symmetry to these regular polygon figures? So you can see, first of all regular polygon हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, रेगुलर पॉलीगन हम लोग पढ़ चुके हैं. अगेन फॉर रिमाइंडिंग, रेगुलर पॉलीगन्स आर द पॉलीगन्स विच हैव ऑल साइड्स इक्वल. इट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, और मोर करेक्ट टू से रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर व्हाट? रेगुलर स्क्वायर. स्क्वायर रेगुलर नहीं होता है. रेगुलर ट्रायंगल नहीं होता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर. यू कैन यूज द वर्ड रेगुलर व्हाट? क्वाड्रिलेटरल. रेगुलर ट्रायंगल, but the name given to is what? Equilateral triangle and square. But this is regular pentagon. Why? Sides are same. So जितनी साइड्स होती हैं रेगुलर पॉलीगन में उतनी ही सिमेट्रिकल लाइन मिलेंगी हमको. लेट अस सी. triangle equilateral triangle has 3 sides, so we have got 3 lines of symmetry.
यू कैन चेक इन अदर फिगर. मैं इसमें चेक करता हूँ. 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, 6, 7 और 8. क्योंकि ये तो 1 वाली ही है, ये तो 2 वाली ही है. सो यू कैन सी नंबर ऑफ लाइन्स अ रेगुलर पॉलीगन हैज़, इतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. ठीक है, ओके. सो व्हाट अबाउट सर्कल? व्हाट अबाउट सर्कल? इफ़ यू हैव गॉट सर्कल तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? लेट अस सी. इफ़ वी हैव सर्कल, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? कहीं से भी ड्रॉ कर लो. यू कैन ड्रॉ नंबर ऑफ लाइन्स. यू कैन सी English alphabet and our O is resemble with a circle. So O और सर्कल में क्या डिफरेंस है? यस, O जितनी लाइन इसकी होंगी उतनी ही लाइन इसकी होंगी. तो ये क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स. तो सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? इनफाइनाइट. एज O यू कैन फोल्ड एंड आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, आप इसके बीच में भी ड्रॉ कर सकते थे. मतलब कितनी आ सकती हैं इसके बीच में ऐसे. सो सर्कल हैज़ इनफाइनाइट. अदर दैन सर्कल, ए हैज़ 1, बी हैज़ 1, सी हैज़ 1, डी हैज़ 1, ई हैज़ 1. दिस हैज़, these two letters have not got any line of symmetry. Similarly इनके पास भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट जिनके पास है उनके पास लिखा हुआ है. अच्छा, अब आपका एक जीके का क्वेश्चन आ सकता है. हाउ मेनी लेटर्स विच डोंट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आपको ये फॉर रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये पता होना चाहिए. रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन होती है जिसके अलॉन्ग अगर आप फिगर को फोल्ड करते हैं तो फिगर ओवरलैप हो जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ हम देख चुके हैं. मूविंग फर्दर, रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशन, जो सिमेट्री हमको रोटेशन से मिली है, मतलब रोटेशन मतलब घुमाने से मिली है. टर्न, द एक्शन ऑफ टर्निंग अ फिगर अराउंड अ पॉइंट और वर्टेक्स. अराउंड अ पॉइंट, कोई पॉइंट और वर्टेक्स. अगर किसी पॉइंट और वर्टेक्स के अलॉन्ग घुमाने से हमको सिमेट्री मिल रही है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री. लेट अस सी. ये एक ट्रायंगल है, इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, टर्निंग, रोटेशन. तो जो हमको फिगर मिलेगा दैट इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री. टर्निंग अ फिगर अराउंड अ पॉइंट. ये सिमेट्री की बात नहीं हो रही है, ये टर्निंग, ये रोटेशन दिखाइए. हमें रोटेट करना कैसे है, ठीक है, रोटेट करना कैसे है, ये रोटेशन है. आगे देखते हैं हम लोग. फिर ट्रांसलेशनल सिमेट्री, एक्शन ऑफ स्लाइडिंग. अगर हम किसी चीज़ को स्लाइड करते हैं, ये फिगर है मेरा, इसको मैंने स्लाइड करके यहाँ पे ले आया, तो भी ये क्या हो गई? ट्रांसलेशन. लेट अस सी. ये ऑक्टागन का फिगर दिखा रखा है, इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं. तो एक्ट ऑफ स्लाइडिंग अ फिगर इन एनी डायरेक्शन, ये एक्ट ऑफ स्लाइडिंग है. एक्ट ऑफ स्लाइडिंग मतलब इसको स्लाइड बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे. ठीक है. सिमिलरली रिफ्लेक्शन फ्लिप, अ रिजल्ट ऑफ अ फिगर फ्लिप्ड ओवर अ लाइन. अगर मैं किसी एक फिगर को लाइन के ऊपर फ्लिप ओवर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्शन सिमेट्री. ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग. विच शेप शो रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन और रोटेशन? ये आपको बताना. विच शेप शोज रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन और रोटेशन. तो ये देखो, ये क्या है? रोटेशन, ये घूम रहा है. रिफ्लेक्शन, इस लाइन के अलॉन्ग हमने इसको ऐसे कर दिया. और ये है ट्रांसलेशन ऑन द सेम स्लाइड. ओके. सो
only this much in this video. I hope you have enjoyed the session and you know something about symmetry. Thank you for watching. Bye bye.